How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study habitat of the living. Ready, steady, start. The natural home of an animal is called its habitat. A habitat can be a pond, forest, moist soil, river, sea, grassland, desert, or even a tree. It should provide food, water, and shelter for protection from other animals, harsh weather conditions, and a resting place for the living beings. The following are the images of some animals and their habitats. Using a pencil, connect each animal with their habitats. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: components of environment, types of habitats, adaptations in terrestrial habitats, habitat and adaptation, adaptations in aquatic habitats. Components of environment. A habitat is made up of two basic components, biotic components and abiotic components. The living things present in the environment are called biotic components and the non-living things present in the environment are called abiotic components. Okay, देखिए हमारा जो habitat है जहाँ हम रहते हैं उस प्लेस को आप हैबिटेट बोलते हो, ठीक है. वो टू बेसिक कंपोनेंट से बना है, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक. जो लिविंग थिंग्स है उनका जो हैबिटेट है उसे हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनका जो हैबिटेट है उसे हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. Biotic components include all living things in the environment such as plants, animals, and decomposers. They play an important role in the sustenance of the environment and affect other components. Let us study now. Okay, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि हमने जाना अभी कि लिविंग बींग्स को बोला जाता है, एक तरीके से उनके जो कंपोनेंट्स हैं उसको बोला जाता है. तो इसमें क्या क्या आ गया एनवायरनमेंट में से? प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, डिकम्पोजर्स आ गए. अब ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में. चलिए आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. प्लांट्स. Green plants are called producers or autotrophs because they prepare their own food by using water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll in a green plants. Okay, देखिए ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं या तो फिर ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. अब उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? जो ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का या फिर पेड़ का, वो ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है उसमें, ठीक है. इसीलिए उसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस मतलब कि अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स जो कि उन्हें मिलते हैं सॉइल से, वाटर भी मिलता है. ओके, नाउ the process of making food by plants is called photosynthesis. Some of the food produced by the plants is used by the plant itself. The rest is stored in different parts. This food is used directly or indirectly by other organisms. देखिए जो ये प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का, इसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. अब जो फूड प्लांट ने प्रिपेयर किया है उसका जो कुछ भाग है वो खुद यूज़ करता है और बाकी का जो पार्ट है फूड का वो अपने जो पार्ट्स हैं उनमें ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है. वो फूड जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो प्लांट यूज़ करता है, ठीक है. नाउ एनिमल्स. देखिए यहाँ पे बताया गया द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स जिसमें वाटर चाहिए, ऑक्सीजन, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. नाउ एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स. दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और heterotrophs. Animals can be categorized into herbivores, carnivores and omnivores on the basis of their feeding habits. Herbivores eat plants and plant parts. Example, cow, sheep, goat, zebra, horse, etc. Carnivores eat the flesh of animals. Example, wolf, frog, lizard, snake, eagle, owl, etc. Omnivores eat both plants and animals. Example, duck, bear, fox, human, etc. Okay, देखिए एनिमल्स जो होते हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते, वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. उन्हें बोला जाता है कंज्यूमर या तो फिर हेट्रोट्रॉप्स. अब उनकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर उन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं, जैसे कि गोट, काउ, ठीक है.
कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि वुल्फ, फ्रॉग, लिजर्ड। ओके। ओमनिवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है डक एंड बेयर। Certain animals feed on the dead bodies of animals and are called scavengers. They help to clean the environment. Example, vulture, jackal, crow, etc. देखिए, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डेड एनिमल्स का जो फ्लैश है वो खाते हैं, उन्हें स्कैवेंजर्स बोला जाता है। अब ये एक तरीके से एनवायरनमेंट को हेल्प ही कर रहे हैं, जो वेस्ट है उसे खा करके, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स है वल्चर, जैकल, क्रो। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं सारे। डिकम्पोजर्स। Decomposers are microorganisms that decompose the dead remains into nutrients in the soil, which are used by plants for growth. Example, बैक्टीरिया, फंगी, etc. ओके। डिकम्पोजर्स क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स या फिर डेड प्लांट्स के थ्रू क्रिएट होते हैं। ये हेल्प करते हैं सॉइल को फर्टाइल करने में, ठीक है, जो कि हेल्प करता है प्लांट को ग्रो करने में। ओके। इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एंड फंगी। एबायोटिक कंपोनेंट्स। Abiotic components include non-living things such as soil, water, air, light and temperature. Biotic components obtain oxygen and carbon dioxide from the air. Plants require carbon dioxide to make food and many living organisms require oxygen for respiration to release energy. Okay, देखिए, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर, ठीक है। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि उन्हें मिलती है एयर से, ठीक है। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है अपना खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर फॉर मेनी of their metabolic activities like growth, movement and reproduction. Plants और animals जो होते हैं उन्हें वो डिपेंड करते हैं किस पर? टेम्परेचर पर, दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, जिसकी ग्रोथ हो गया, ठीक है, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट to carry out photosynthesis and many flowers and leaves droop into absence of sunlight. Light influences animals too, as earthworms are sensitive to light and come out only in the night to feed and reproduce. Green plants को sunlight की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जो लाइट है उससे दूर रहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म नाइट टाइम में बाहर आता है, ठीक है। ऑल बायोटिक कंपोनेंट्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड फ्रॉम द एक्वेटिक हैबिटेट्स टू द ड्राई डेजर्ट्स। देखिए, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे उनको ज़रूरत होती है वाटर की, ठीक है। अब जो इस तरीके के बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट से लेके ड्राई डेजर्ट तक पाए जा सकते हैं, ठीक है। सॉइल कंटेन्स इनऑर्गेनिक मिनरल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस विच सपोर्ट प्लांट्स लाइफ। A fertile soil is the most important resource for the existence of plants and animals and basic growth medium for land habitats. Okay, देखिए, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ के लिए एक फर्टाइल सॉइल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर प्लांट्स ग्रो करेंगे उसी के बाद ह्यूमंस या फिर एनिमल्स हैं उनको फूड प्रोवाइड हो सकता है, ठीक है। यही एक लौता मीडियम है जो कि लैंड से हमें मिलता है हमारे फूड के लिए, ओके। एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। प्लांट्स नीड सॉइल एंड वाटर टू ग्रो and light, air and water are needed to prepare their food. Animals require air, water, food, light and shelter to live. An environment area that fulfills all these requirements for the survival of animals are known as their habitat. Thus, abiotic components and biotic components interact with each other. Let's study about the habitats of different living organisms in this chapter. देखिए,
प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उन्हें भी एयर, वाटर, शेल्टर, फूड सब की ज़रूरत होती है। तो जब एक प्लांट को या फिर एनिमल को किसी एक एरिया में एज पर नीडेड सब मिल जाता है तो उसे बोला जाता है हैबिटेट। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट इस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। हैबिटेट, द नेचुरल सराउंडिंग or home where an organism lives is called its habitat or its home. Animals can be grouped according to their habitats. Fish, lotus and water hyacinth live in a pond or a river to forming a community. Similarly, squirrels, monkeys and birds live on trees. It provides food, shelter, water and suitable climatic conditions to an organism. Example of habitat include ponds, river, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड ट्रीज। देखिए, जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग है या होम कह लो किसका है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनका वो होम है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। अब एनिमल्स जैसे कि जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि फिश, लोटर, वाटर हियासिंथ, ये सब कहाँ पाए जा सकते हैं? पॉन्ड, रिवर, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स है तो पानी में पाए जा सकते हैं। ठीक है, वैसे ही स्क्विरल, मंकीज हो गए, वो सब आपको ट्रीज पे मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको इजीली फूड और शेल्टर उनका वही होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर लिव ऑन लैंड, इन वाटर और इन ट्रीज। Based on this, habitats are of the following types. Okay, living organisms जो होते हैं वो वाटर, लैंड या फिर ट्रीज पे रहते हैं, तो इसी के बेसिस पे इनका जो हैबिटेट है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, पहला है आपका टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होता है वो लैंड पर होता है। Terrestrial habitat means the land area where plants and animals live. The plants that grow on land are called terrestrial plants, and the animals that live on land are called terrestrial animals. Organisms that live on land like tiger, cow, dog, horse, camel, elephant, polar bear, etc. are terrestrial organisms, and mango tree, banana tree, etc. are the terrestrial plants. The terrestrial habitat can be further divided into 5 groups, that is forest, grassland, desert, mountain and polar region. देखिए, अभी जैसे मैंने बताया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स जो होते हैं वो लैंड पर होते हैं, तो लैंड पर जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसे जो है 5 ग्रुप्स में भी बांटा गया है। आपका हो गया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन। ठीक है, देखिए, फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल्स। ग्रासलैंड is large area and land covered with grass. Desert is large area and land covered with sand. Mountain is an area covered with long stretches of hills. Polar region is an area covered with snow and ice throughout the year. Lakes and rivers have fresh water. तो ये सब क्या है? आपका terrestrial area है। ठीक है, aquatic habitats. These habitats include freshwater habitats like ponds, lakes, streams and rivers, and saline water habitats like seas and oceans. The plants that grow on or under water is called aquatic plants, and the animals that live in water are called aquatic animals. Turtle, lotus, water lily, duckweed, water chestnut and water hyacinth are aquatic organisms. Okay, aquatic habitats मतलब वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम उनका वो होता है एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, अब जैसे कि रिवर्स, पोन्ड्स, ये सब हो गया, ये आपके फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, वहीं सलाइन वाटर में आपके सी एंड ओशंस आ जाते हैं। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स अलग होते हैं जो कि पानी के अंदर उगते हैं, और वहीं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि टर्टल, लोटस, वाटर लिली। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स के। ठीक है, arboreal habitats. These habitats include dwelling of trees. Organisms that live on trees like monkeys, squirrel, etc. are arboreal organisms. Arbor is a Latin word which means trees or its branches. Okay,
आर्बोरियल हैबिटेट्स, मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ट्रीज पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स। आर्बर जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ट्रीज या फिर उसकी ब्रांचेस। देखिए, एलिफेंट इज एन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टर्टल इज एन एक्वेटिक हैबिटेट, मंकी इज एन आर्बोरियल हैबिटेट। Aquatic habitats can also further divided into two groups, marine water and fresh water. Aquatic habitats को two group में बांटा गया है। पहला है आपका marine water और दूसरा है fresh water। जैसे कि हमने पढ़ा marine water में क्या क्या आता है, sea and oceans, वहीं fresh water में lake, river, pond. Okay. Plants and animals that live together in a habitat from a community. वो प्लांट्स और एनिमल्स जो एक साथ रहते हैं एक हैबिटेट में, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है। सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, हैबिटेट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉरेस्ट, लायन, फॉक्स, जैकल, सैंडल, चीक, पैलाश। ग्रासलैंड, एलिफेंट, जिराफ, डियर, जेब्रा, कॉर्नफ्लावर, मिल्कवीड। डेजर्ट, कैमल, स्नेक, वल्चर, रैट, कैक्टस, कैमल, थॉर्न ट्री ग्रास, लो श्रब। माउंटेन, याक, माउंटेन गोट, स्नो लियोपार्ड, पाइन, स्प्रूस, फिर यूकलिप्टस। पोलर रीजन, पोलर बेयर, पेंगुइन, सील, ब्लू व्हेल, मूजेस, ब्लू ग्रास, हेयर ग्रास। मेराइन वाटर, ऑक्टोपस, सी स्नेक्स, सी गल, स्क्विड, सीवीड, सी ग्रास, लेटर्स, मैनग्रोव। फ्रेश वाटर, फ्रो, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिली, लोटस, डकविड्स। ओके, ये हैबिटेट्स दिए गए हैं यहाँ पे और इनके प्लांट्स और एनिमल्स बताए गए हैं जो इन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ओके, हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन। Different surroundings pose different challenges for organisms living in them. Therefore, their body parts are designed accordingly. Their habitats are also suited to meet the requirements of living in a particular surrounding. Thus, adaptation may be defined as a modification or change in an organism's body or behavior which helps it to survive in a particular habitat or environment. Different living organisms can adopt their habitat surrounding in different ways. Adaptation can be in the form of shape, size, color, structure, or behavior. For example, the forelimbs of birds are modified into wings so that they can fly. Okay, देखिए, जो हैबिटेशन होती है एनिमल्स की वो उसके अकॉर्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेके बता देती हूँ आपको। डेजर्ट एनिमल्स लेते हैं। डेजर्ट एनिमल में आपका आ जाता है कैमल। कैमल की क्योंकि डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट में सबसे ज़्यादा हीट जो होती है वहाँ पे होती है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी देती है और जो सैंड है हीट की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो हैं उस सैंड पे इजीली वॉक नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम कैमल्स को लेके चलें, कैमल्स की जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है, ठीक है, जो कि उनके इनर लेयर को प्रोटेक्ट करती है हीट से, और वहाँ पे पानी भी नहीं मिल पाता। इसीलिए जो कैमल्स हैं उनके अंदर एक चीज़ होती है जिसके थ्रू वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं और वो हफ्तों तक बिना पानी के रह सकते हैं। ठीक है, तो वो एडॉप्टेड हैं, उस हैबिटेट से वो एडॉप्टेड हैं। इस तरीके से बाकी भी हैबिटेट्स होती हैं जिनसे बाकी एनिमल्स एडॉप्टेड होते हैं, जैसे कि पोलर रीजन में आपके पोलर बेयर्स होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी बर्ड्स बताई गई हैं। बर्ड्स में 4 लिम्स होते हैं जो कि उनके पास विंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो उड़ सकती हैं। ठीक है, what will happen if the organisms are not adapted to their habitat? If organisms are not adapted to their habitat, they may struggle to find resources, face an increased predation risk, experience reduced reproductive success, have lower fitness and survival rates, and may be limited in their habitat range. These factors can ultimately lead to population decline or even extinction. Now let's discuss the adaptation in animals living in different habitats in detail. Okay, देखिए क्या होगा अगर एनिमल्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैबिटेट ना मिले। ओके, अगर उनको उनकी हिसाब से हैबिटेट नहीं मिलेगा तो फिर वो
वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस वो मूवमेंट करेंगे अगर कर सकते हैं तो, और अपने लिए फूड ढूंढेंगे, शेल्टर ढूंढेंगे। अगर उन्हें नहीं मिल पाएगा तो वो डेथ भी हो सकती है उनकी, एक्सटिंक्ट मतलब कि ख़त्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, वो ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। एडेप्टेशंस इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स इंक्लूड डेजर्ट्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में हमें पता है लैंड आती है, तो जिसमें डेजर्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है। डेजर्ट, वी ऑलरेडी नो दैट द डेजर्ट फेस scarcity of water and have hot and dry climate. They have a short rainy season followed by a long dry season. The sandy soil keeps blowing and settles in the form of huge and sandy sand dunes in the desert. It is very difficult to walk on it. The feet keep sinking in the sand. The only living things that we see are camels, snakes, rats, scorpions and thorny plants like cacti and babool and acacia trees. ओके, देखिए, क्योंकि डेजर्ट एरियाज है, हमने अभी कैमल की बात की थी, ठीक है, तो डेजर्ट एरियाज में सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, रेतों के टीले, जो कि एक माउंटेन की तरह बने हुए होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। तो वहाँ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का वॉक करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है, आपके पैर फंस जाएंगे, आप प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब वहाँ का जो सीज़न होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है, वाटर स्कार्सिटी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं कैमल्स, स्नेक्स, रैट्स, स्कॉर्पियंस, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं कैक्टाई या फिर बबूल। ओके, living organisms have adapted to live in these environmental conditions. Two commonly found organisms in this habitat are camel and cactus. Okay, देखिए, मैंने जैसे हैबिटेट की बात की थी, एडेप्टेशन की बात की थी, तो वहाँ पे कैमल का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पे जो एनिमल्स जो अडेप्टेड है इस हैबिटेट से, वो जो नॉर्मली पाए जाते हैं यहाँ पे, वो हैं आपके कैमल एंड कैक्टस, वो प्लांट होता है। ओके, एडेप्टेशन इन अ कैमल। अ कैमल is superbly adapted to the desert habitat and is often called the ship of the desert. It shows the following adaptation. Adaptation in a camel. A camel is superbly adapted to the desert habitat and is often called the ship of the desert. It shows the following adaptations. Okay, जैसे कि हमने पहले भी बात किया है कैमल के बारे में कि ये डेजर्ट एरिया से एडेप्टेड होता है, वो उसका हैबिटेट होता है, उसे वहाँ का शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है। नाउ कैमल हैज़ लॉन्ग लेग्स विच हेल्प टू कीप द अपर पार्ट ऑफ इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड ऑन द ग्राउंड. It can live for many days without water. It uses the entire food while walking and the hooves are covered with thick padded soles that help it to walk on the hot and slippery sand. Okay, देखिए, कैमल्स जो होते हैं उनके जो लेग्स होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उन्हें सैंड की जो हीट है वो उनकी अपर बॉडी तक ना जा पाए इस चीज़ में, ठीक है। जो कैमल्स हैं काफ़ी समय तक बिना पानी के रह सकते हैं क्योंकि वो अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, तो कभी भी वो फूड खा सकते हैं अपना। ओके, व्हेन इट गेट्स वाटर इट ड्रिंक्स एज मच एज 50 लीटर इन अ सिप. दिस वाटर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द टिश्यूज ऑफ इट्स बॉडी. It excretes very little urine during hot days, that is, just half a liter of urine is passed out. Camels' feces also contain very little water, almost dry. देखिए, ओके, जब इन्हें पानी मिलता है तो ये एक सिप में 50 लीटर तक वाटर सिप करते हैं, ओके, और फिर उसके बाद जो वो वाटर है वो इनकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हॉट डेज़ में बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ऑलमोस्ट हाफ लीटर होता है, और जो इनके फीसेस होते हैं वो भी ड्राई ही होते हैं। नाउ इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स सो दैट सैंड डज नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग द सैंड स्टॉर्म. जब सैंड स्टॉर्म आता है तो इनके नोजेस जो होते हैं वो नोस्ट्रिल ये क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सैंड है वो इनकी बॉडी में नहीं जाता। ओके, It has long eyelashes which help to prevent sand from reaching its eye during the sandstorm. Its breathing rate is very slow, hence very little water is lost during breathing.
It can increase its body temperature up to about 42 degrees Celsius to match it with the surrounding. Hence, the amount of water lost due to the perspiration is greatly reduced. It stores fat in the hump which act as a food reserve. ओके देखिए, इनके जो आई लैशेज होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, तो जब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी आइज़ में सैंड जाने से, ठीक है। जो इनका ब्रीदिंग रेट होता है वो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से इनके बॉडी में जो वाटर होता है वो कम लूज होता है, ठीक है। ये अपना बॉडी टेम्परेचर अप टू 42 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं, जो कि मैच करता है इनकी सराउंडिंग से, ठीक है। नाउ इनके पास हम्प होता है, ओके। कैमल्स आपने देखे हैं, इस एडेप्टेशन इन अ कैमल में देख सकते हैं हम्प कहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे ये अपना फूड स्टोर करके रखते हैं और उसे कभी भी ये खा सकते हैं, ओके। नाउ ऑल्दो some desert dwelling organisms like rats and snakes do not have long legs like camels. They may live in burrows deep inside the sand to keep away them from the intense heat during the day. They come out only during the night when the weather is cool. Okay, यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में desert animal in burrows. Okay, वहाँ के जो animals हैं क्योंकि वो खुद को हीट से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो डीप जो है ब्यूरोज खोदते हैं और उसमें जाके रहते हैं, और शाम तक रात तक जब जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है तब वो वहां से बाहर निकल के आते हैं, ओके। एडेप्टेशंस इन अ कैक्टस प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर xerophytes, okay। Mostly xerophytes have either very small leaves or no leaves, or the leaves which are reduced to spines. All xerophytes have green and spongy stem and long roots. Let's see how a cactus adapt itself in a desert. Plants जो कि desert areas में grow करते हैं उन्हें हम xerophytes कहते हैं। तो जो xerophytes होते हैं वो mostly उनके जो leaves होते हैं बहुत small होते हैं और they are reduced to spines, ठीक है। xerophytes ग्रीन कलर के होते हैं, स्पॉन्जी टेक्सचर होता है उनका और लॉन्ग रूट्स होती हैं। तो आइए इनकी एडेप्टेशंस के बारे में जानते हैं। द लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। दिस हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू transpiration, the process by which water moves through a plant and evaporates mainly through the leaves. The thorns that we see on the cactus plant is actually its modified leaves. Okay, देखिए जो लीव्स होते हैं कैक्टस में वो रिड्यूस स्पाइन्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं वाटर लॉस से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर है वो प्लांट्स में मूव होता है थ्रू आउट द प्लांट, ठीक है। तो जो ट्रांसपिरेशन है उसमें जो वाटर लॉस होता है उससे वो रोकते हैं कौन? लीव्स कौन से होते हैं? रिड्यूस्ड स्पाइन्स, ओके। नाउ the thick green color portion of the cactus plant is actually the stem, which it helps in the process of photosynthesis. It is spongy and stores water, okay। thick green part साइड में आप देख सकते हैं कैक्टस प्लांट है, इसका जो thick green पार्ट है वो एक्चुअली क्या है? इसकी स्टेम है, और स्टेम में ही जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो चलता है। ये स्पॉन्जी होता है और वाटर स्टोर करके रखता है, okay। It is covered with a waxy layer which prevents the loss of water and helps in retaining water inside the plant body, okay। ये covered होता है एक waxy layer से और वाटर के लॉस से प्रिवेंट करता है और वाटर स्टोर करने में भी हेल्प करता है। नाउ its roots are long and reach the deep layers of the soil to absorb more water during short rainfall in desert areas, okay। इनकी जो रूट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, वो लॉन्ग इस वजह से होती हैं ताकि ये डीप डाउन से पानी को ऑब्जर्व कर सकें, ओके। नाउ एक्टिविटी 1, select any potted cactus plant and a leafy plant. Tie some parts of the two plants with polythene bags and keep them in sunlight for a few hours. After a few hours, observe the water collected in the polythene bags and compare them to rate for transpiration of two plants. You will observe that the cactus plant loses less water than the leafy plant. The stems and leaves have a thick waxy coating cuticle. Their leaves are reduced to spines and reduce transpiration. Green leaf-like stems, phylloxerates, have a thick cuticle to check transpiration.
Xerophytes are sunken deep stomata to reduce transpiration. ये आप खुद से करेंगे. Mountains. In mountains, the weather is cold and windy. Also, the ground is mostly covered with snow. These conditions make it difficult for plants to and for animals to move around and find food for them. There दे हैव सर्टेन एडेप्टेशन टू लिव इन द माउंटेन्स. ओके, देखिए माउंटेन्स में जो वेदर होता है वो कोल्ड होता है और विंडी होता है, क्योंकि स्नोफॉल होती है वहाँ पे. उसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्राउंड होता है वो स्नो से कवर्ड हो जाता है. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए खाना ढूंढने में उनकी मदद नहीं कर पाती. ठीक है, उन्हें दिक्कत होती है. तो इस टाइप की जो अडेप्टेशंस होती है माउंटेन एरियाज में, ये उनकी एडेप्टेशन होती है कहीं ना कहीं. ठीक है, प्लांट्स, जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स, दोनों. एडेप्टेशन इन एनिमल्स. Polar bear, yak, snow leopard, penguin and polar bear found in Arctic areas are some examples of animals living in mountains. Okay, ये सारे animals हैं जो कि example हैं जो mountains में रहते हैं. They have white or light colored skin to match the surrounding. This ability of living beings to merge with their surrounding is called camouflage. Okay, क्योंकि इनकी स्किन जो है वो स्नो से मैच करती है, वाइट होती है, तो ये एक तरीके की इनकी सराउंडिंग से मैच करती हुई एबिलिटी होती है. इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज. ओके, एनिमल्स कैन स्टोर फैट एज थिक लेयर बिलो द स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्रीजिंग कोल्ड एंड प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द विंटर मंथ. सम ऑफ देम स्लीप थ्रू द विंटर्स हर्बिनेशन. ओके, वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत फैट होती है, जो कि उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, और महीनों तक एनर्जी देती है. अब कुछ एनिमल्स भी होते हैं वहाँ पे जो थ्रू आउट द विंटर सिर्फ सोते हैं. ये हर्बिनेशन कहलाता है. ओके, नाउ अ याक हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फर विच प्रोटेक्ट इज फ्रॉम द कोल्ड. When the ground is covered with snow, the yak uses its hooves and horns to break the ice and graze on the grass beneath. Okay, देखिए याक के पास भी थिक लेयर होती है स्किन की, जो कि उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है. अब उनके जो ग्राउंड जो है वो स्नो से कवर्ड रहता है, तो वो अपने हॉर्न्स का और हूव्स का यूज़ करके उस स्नो को रिमूव करते हैं और ग्रास पे इजीली बैठ सकते हैं. ओके, now a snow leopard also has a thick layer of fur on its body including the feet and toes to protect them from the cold. Snow leopard, उनकी भी जो स्किन होती है वो थिक लेयर्ड होती है, जो कि उनके पूरी बॉडी पे, फीट पे रहते हैं, जो कि उनको हेल्प करता है कोल्ड से बचने में. A polar bear has a thick layer of fur on the body and a layer of fat underneath its skin which protect the animals from cold. Padded feet help it to walk on the snow. Okay, ये जो animals होते हैं इनकी जो feet होती है वो padded होती है, जो कि इनकी help करती है snow पर चलने के लिए. Polar bear की skin भी thick होती है, जो कि उन्हें cold से protect करती है. Adaptation in plants. Plants are short in height. Trees are absent in regions with heavy snowfall. Only small plants like lichen and mosses grow there. There are small shrubs or low-lying herbs. They do not grow for months together. Most mountain plants grow close to the ground and avoid being uprooted by strong and frequent winds. The trees are normally cone-shaped with sloping branches which help the snowfall off easily. A few plants have a needle-shaped leaves to reduce water loss due to the transpiration, as most of the rainwater flows down the slopes and very little is available for plants. They shed their leaves rapidly. Example, mosses, lichens, etc. Pine, cedar and spruce are some examples of the trees that grow in the mountain areas. Okay, वो प्लांट्स जो कि माउंटेनियस एरियाज में उगते हैं उनकी जो हाइट होती है वो शॉर्ट होती है थोड़ी सी. ठीक है, नाउ क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती हैं तो उनके जो शेप होते हैं वो कॉनिकल होते हैं. कॉनिकल शेप की वजह से जो स्नोफॉल होती है वो इजीली स्लाइड होके नीचे गिर जाती है. तो इन जो ये ट्रीज होती हैं इनकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी निडल शेप की होती हैं. क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भी बारिश होती है, स्नोफॉल होती है, जो वाटर है वो स्लोप से स्लाइड होके नीचे की तरफ आ जाता है, तो खुद का वाटर लॉस रोकने के लिए उनकी जो लीव्स होती हैं वो निडल शेप्ड होती हैं. ओके,
वहाँ के एग्जाम्पल्स हैं आपके पाइन, चेदार, स्प्रूस. ओके. Grasslands and forest. Grasslands are vast areas covered with grasses and small leafy plants. Woody plants, shrubs or trees may grow on some grasslands. Animals graze in grassland areas. These include bison, deer, elephants, zebras, hippopotamuses. A few shrubs and trees are also seen. Grasslands have hot and dry summer with low water availability. Okay, देखिए grasslands जो होते हैं वो wide areas होते हैं, ठीक है. यहाँ पे small leafy plants पाए जाते हैं और कुछ trees भी पाए जाते हैं. Now क्योंकि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं बीसन, डियर, एलिफेंट, जेब्रा, हिप्पोपोटामस. ओके. कुछ शर्ब्स भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं. ग्रासलैंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं समर में और लो वाटर अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे, ठीक है. दे हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द एयर विच इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट. अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, herbs and shrubs are found in tropical forest. Wide variety of animals are also found in this forest. Okay, जो tropical forest होते हैं वहाँ पे rainfall throughout the year होती है, ठीक है. अब यहाँ पे trees, herbs, shrubs सब पाए जाते हैं. Now, lion and deer are found both in grasslands and forest. An animal that hunts other animals for its food is called a predator. The animal that gets hunted by the predator is called prey. A lion is a predator while the deer is a prey. A predator is usually bigger in size than the prey. Both predator and prey develop a number of adaptations for their survival. Let's understand with the example of lion and a deer. Okay, देखिए लायन एंड डियर ये ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट दोनों में पाए जा सकते हैं, ठीक है. अब जो शिकार करता है दूसरे एनिमल का उसे खाने के लिए उसे हम कहते हैं प्रीडेटर और जो शिकार हो रहा है उसे हम कहते हैं प्रे. तो लायन जो है वो प्रीडेटर है और डियर जो है वो प्रे है. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. एनवायरमेंटल लिटरेसी. सर्टेन स्पीसीज ऑफ ऑक्टोपसेस आर रिनोन्ड for their remarkable camouflage abilities. They can change the color, pattern and texture of their skin to match their surrounding effectively, disappearing into their environment. This camouflage helps them to avoid predators and allow them to ambush prey effectively. Okay, देखिए कुछ स्पीसीज होती हैं ऑक्टोपसेस की जो कि उनको हेल्प करती हैं नेचर से कलर को खुद के कलर से मिलाने की. फॉर एग्जाम्पल पैटर्न हो गया, टेक्सचर हो गया, उनकी स्किन जो है सराउंडिंग से मिलती है तो उनकी हेल्प करती है प्रे बनने से रोकने के लिए. कोई भी जो प्रेडेटर है एज अ प्रे उन्हें खा सकता है. तो इस तरीके से जब वो मिल जाती हैं कलर में, जैसे कि ग्रास हो गया या सैंड हो गया, उसके कलर में जब मिल जाते हैं तो प्रेडेटर जो है वो पहचान नहीं पाते हैं कि वो प्रे है या नहीं है. ओके. नाउ एडेप्टेशन इन एलिफेंट एंड अ लायन प्रेडेटर. In case of animals like elephant, they huddle together if there is an attack, making sure their young ones remain safe. Okay, देखिए अगर हम यहाँ पे एलिफेंट्स की बात करें तो वो ग्रुप में चलते हैं, ठीक है. अब अगर किसी ने उन पे हमला किया है तो वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो उनके यंग वंस है वो उन्हें सेफ रख सकें, ठीक है. दी eyes of a lion face forward, that is eyes are in front of the face. This means that the field of view of each eye partially overlaps the field of view of the other eye. This allows the animal to judge the distances correctly. It has long claws on its front leg and in the teeth are sharpened. These help in him to catch the prey. In case of carnivores like lions and cheetahs, their light brown fur help them to hide in the dry grasslands when they hunt for prey animals they eat. Okay, देखिए हमने अभी एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे लायन के बारे में देख रहे हैं. लायन की जो आइज़ होती हैं वो उनकी फोरहेड पे बिल्कुल मिड में होती हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं इजीली सराउंडिंग में देखने के लिए. ओके. उनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो शार्पन होते हैं, टीथ जो होते हैं वो शार्प होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं उनके प्रे को कैच करने के लिए. ओके. नाउ उनकी जो स्किन होती है वो ब्राउन कलर की होती है जिसकी वजह से वो जो ड्राई ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे इजीली खुद को छुपा सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं. एडेप्टेशंस इन डियर प्रे.
The body color of a deer help it to blend with the surrounding, thus avoiding being caught by the predators. Deer has eyes on its side so as to know from which side of the predator may attack. In addition, deer has long ears which give them a good hearing ability to trace the movement of the predators. It can run very fast. This help the deer to run away from the predators. ओके देखिए, इनका जो बॉडी कलर होता है ये सराउंडिंग से इजीली ब्लेंड हो जाते हैं, तो ये इनको हेल्प करता है प्रेडेटर से बचने के लिए. सेकेंडली, इनकी आइज़ जो होती हैं दोनों साइड पे होती हैं इस तरीके से कि ये इजीली देख सकते हैं कि इनके सराउंडिंग में कोई प्रेडेटर है या नहीं है. इनके ईयर्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं कोई भी छोटी सी आवाज़ अगर हो रही है तो ये पता करने में कोई प्रेडेटर आसपास है या नहीं है. ओके, ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं और खुद को बचा सकते हैं. नाउ adaptations in aquatic animals. We have learned that aquatic habitats include freshwater habitats and saline water habitats. Okay, aquatic के बारे में हमने पढ़ा था. aquatic habitats में हम fresh water के बारे में पढ़ते हैं और saline water habitats के बारे में पढ़ते हैं. Now freshwater habitat, many varieties of animals and plants are found in ponds, lakes and rivers. तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं तो फ्रेश वाटर में काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में. ओके, एडेप्टेशन इन एनिमल्स. फिश, द बॉडी शेप ऑफ अ फिश इज स्ट्रीमलाइंड एंड इट हैज fins. These features help them to cut through water currents easily. It has gills instead of lungs. Respiration occurs through the gills, which help a large surface area from the exchange of gases. Their bodies are slippery and scales present on them help prevent decay in water. Okay, देखिए, इनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है जो कि हेल्प करती है इन्हें वाटर के करंट्स को क्रॉस करने के लिए. ठीक है, इनके पास लंग्स नहीं होती, इनके पास गिल्स होती हैं जिसके थ्रू ये ब्रीद इन करते हैं. ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा स्लीपरी होती है, स्केली होती है. ठीक है, जो कि इनकी हेल्प करती है prevent in water decay. Okay, now tails help in movement and changing direction in water. Bony fish have air bladders and buoyancy that help them stay afloat. Okay, देखिए, इनकी जो टेल होती है ये इन्हें हेल्प करती है फ्लोट करने के लिए. जो बोनी फिश होती हैं उनके एयर ब्लैडर्स होते हैं बोयंसी के लिए और स्टे अफ्लोट करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं. ओके, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. There are some sea animals that do not have gills like dolphins and whales. They breathe in air through the nostrils and blowholes that are located on the upper parts of their heads. This allows them to breathe in air when they swim near the water surface. They can stay inside water for a long time without breathing. They came up to the surface for time to time to breathe air. ओके, देखिए, सी एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन्स और व्हेल्स, इनके पास गिल्स नहीं होते, तो इनके पास होते हैं ब्रीथ करने के लिए इनके जो नोस्ट्रल्स होते हैं वो इनके अपर बॉडी पार्ट्स पे बने हुए होते हैं जिसकी हेल्प से ये वाटर के सरफेस पे आके एयर ब्रीथ कर सकते हैं और पानी में विदाउट ब्रीदिंग काफ़ी टाइम तक ये रह सकती हैं. ओके, frog animals living both on land and animal. The animals that live on both land and water are called amphibians. A frog is an amphibian and has the following features. It has webbed feet which help them to swim in the water. Its strong hind legs help it in leaping and catching the prey. It has lungs for respiration on land and moist skin for respiration in water. Okay, देखिए, वो एनिमल्स जो कि लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियन. अब एम्फीबियन का एग्जांपल है फ्रॉग. फ्रॉग के पास जो उनके पोज होते हैं, पैर होते हैं, वो वेब्ड होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए. ओके, अब उनके जो लेग्स होते हैं वो हिंड स्ट्रॉन्ग होते हैं एक तरीके से जो कि उनकी हेल्प करते हैं उनकी प्रे को पकड़ने के लिए. ओके, उनकी जो लंग्स होती हैं वो लैंड में उनकी हेल्प करती हैं ब्रीथ करने के लिए और स्किन जो है वो वाटर में हेल्प करती है ब्रीथ इन करने के लिए. एडेप्टेशन इन प्लांट्स. वाटर प्लांट्स कैन बी आइदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर लाइक हाइड्रिला, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, एग्जाम्पल वाटर यासिंथ, और फ्लोट ऑन द surface of water like water lily
and lotus. The following adaptations are found in the roots, stems and leaves of water plants. Okay, देखिए वाटर प्लांट्स जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी पे तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि फुल्ली वाटर के अंदर ही होते हैं. एग्जाम्पल, जो पानी के अंदर पाए जाते हैं वो हाइड्रिला है, और जो वाटर पे फ्लोट करते हैं वो हो गया आपका वाटर लिली, लोटस. ओके, अब roots are very much reduced as water is available in plant tree. The main function of roots is to hold the plant in place. Okay, रूट्स जो होती हैं वो रिड्यूस्ड होती हैं, वाटर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वाटर के अंदर ही हैं प्लांट्स. ठीक है, तो फंक्शन जो होता है रूट का वो ये होता है कि प्लांट को उसकी प्लेस पर ही होल्ड करके रखे. ठीक है, द स्टेम ऑफ द प्लांट आर सॉफ्ट एंड होलो मेकिंग द प्लांट लाइट इन वेट सो दैट इट कैन ब्लेंड अलॉन्ग विद द मूवमेंट ऑफ वाटर. ओके, जो स्टेम्स होती हैं प्लांट की वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो जैसे कि फ्लो आ रहा है पानी का तो वो उस हिसाब से वो भी फ्लो करता है, प्लांट जो है वो फ्लो करता है. ठीक है, अब लीव्स वेरी इन साइज एंड शेप इज सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स. इन सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर नैरो, thin and ribbon-like, and leaves are narrow and ribbon-shaped. This shape of the leaves enable the water to pass through easily without damaging. In floating plants like water lily, leaves are large and circular. A waxy coating is also present on the leaves that prevents them from the decaying. Leaves का जो size and shape होता है वो बहुत different होता है, तो इसकी जो leaves होती हैं वो बहुत ज़्यादा wide होती हैं जो कि help करती हैं water को easily इनटेक करने में प्लांट के. ठीक है, नाउ यहाँ पे जो प्लांट्स, जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो होते हैं आपके वाटर लिली या फिर लोटस. इनकी जो लीव्स होती हैं वो लार्ज होती हैं और सर्कुलर में होती हैं. ठीक है, इनकी लीव्स पे एक वैक्सी कोटिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है इनकी लीव्स में और प्रिवेंट करती है इन्हें डिके होने से. नाउ सलाइन वाटर हैबिटेट्स ओशंस एंड सीज. Ocean and seas are the habitats of a great variety of living organisms. These organisms adapt themselves to live in their habitat in the following manner. Oceans और seas में काफ़ी सारी वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. Adaptations in animals. A large variety of animals' life is found in oceans and seas. Some of these include fishes, dolphins, whales, mollusca, and sea anemones. Adaptation in fish and saline water is same as in फ्रेश वाटर. ओके, देखिए ओशंस और सीज में लार्ज वैरायटी देखने के लिए मिल सकती है ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, उसमें आपके आ जाते हैं फिशेस, डॉल्फिन्स, वेल्स, मोलस्का, सी एनिमोन्स. ओके, जो एडेप्टेशन होती है फिशेस की सलाइन वाटर में और फ्रेश वाटर में दोनों सेम ही होती है. Dolphins and whales do not have gills. They breathe in air through their nostrils or blowholes. They allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. Sea anemones have a sucker-like base which help them to grip the slide of a rocky pool. The adaptation protect them from the swept away by water currents. Okay, देखिए डॉल्फिन्स और वेल्स जो होती हैं उनके पास गिल्स नहीं होती, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था. उनकी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है उसमें होल्स होते हैं जो कि जब वो वाटर के सरफेस पे जाती हैं तो वहाँ से वो इजीली एयर इनटेक कर सकती हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर सकती हैं. ओके, अब इनकी जो अडेप्टेशन होती है ये इनकी हेल्प करती है जो भी वाटर करंट्स आती हैं उनसे बचने के लिए, ताकि वो उनको उनके साथ लेके ना जा सके. ओके, ये स्पेशली होता है सी एनिमोन्स में. ओके, रीड एट अ ग्लेंस. The environment is made up of biotic and abiotic components. Living things present in the environment are called biotic components, and non-living things present are air, water, sunlight, temperature, soil present in the environment are called abiotic components. Habitat provides food, shelter, water, and suitable climatic conditions to an organism is survive. There are three types of habitat: terrestrial, aquatic, and arboreal. Terrestrial habitats include forest, grassland, desert, mountains, and polar regions. Aquatic habitats are divided as marine and freshwater. Arboreal habitat includes habitat on trees. The desert plants and animals have to face a lot of heat and dryness.
Hence, they are adopted to reduce water loss from their bodies. Mountain plants and animals have to save themselves from very cold and freezing temperatures. Water animals and plants have to adapt themselves from decay in water and adopt the exchange gases dissolved in water. Different types of plants and animals are found in various habitats due to their adaptation in that particular environment. Key terms to know. Environment. Everything that surrounds living things and affect their growth and development. Biotic components, living things present in the environment. Abiotic components, non-living things present in the environment. Habitat. The natural surrounding where a living organism lives. Amphibians. Animals like frog and toad that live both on land and in water. Adaptation. Ability of an organism to adjust to its environment outside. Acclimatization. Temporary and short-term ability of an organism to adjust to its environment. Predator, an animal that hunts other animals for food. Prey, and animals that get hunted by the predator. And xerophytes, plants living in desert. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.